Hello everyone, welcome to the Cancer Talk. Today is the 8th March, International Women's Day. So ये है एक स्पेशल एपिसोड महिलाओं के लिए. इसमें हम लोग जानेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉमन कैंसर्स इन फीमेल्स, उसके डायग्नोस्टिक के डिफरेंट तरीके, ट्रीटमेंट के डिफरेंट मेथड्स और कुछ मिथ्स. तो चलो मिलते हैं डॉक्टर संजय से जो हमें बताएंगे इन सब के बारे में. हाय, मैं डॉक्टर संजय हुनगुनमठ, लीड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैदर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से. और जैसे हमने प्रीवियस टीजर में डाला था अबाउट इंटरनेशनल वुमेन्स डे, सो दिस वीडियो इज बेसिकली अबाउट द वुमेन्स हेल्थ, अबाउट द कैंसर्स in women to make them aware on this International Women's Day. So the most common cancers, if you look at the Indian scenario in females, in women, is number 1, breast cancer, followed by cervical cancer, then comes ovarian and then comes uterine cancers. See, अभी तक जो भी recommendation है about the screening or about the diagnosis, very solid recommendation is only for breast and cervical cancer. As I told you, breast cancer, very mandatory for all the women above the age of 40 years to get a routine mammogram. This helps in picking up a small lesions and then this helps in diagnosing it early. Now when you come to cervical cancer, again, women aged more than 30 years should definitely get pap smears every 3 years and HPV co-DNA every 5 years. So this is a mandatory testing, should be done almost for 50 to 60 years from their onset from their 30 years of age. And the other two cancers, if you look at uterine and ovarian, probably the screening modalities is not that well established. Ovarian cancer के लिए हाँ, we do something called the markers, which अगर elevated है तो we look at to diagnose such cancers. अगर डायग्नोसिस की बात करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर में जब भी मैमोग्राम होता है, एक लंप दिखा या फिर स्क्रीनिंग में इफ यू कैन फाइंड अ स्मॉल लंप, ऑलवेज डू अ बायोप्सी, सोनोमैमोग्राफी करके उसका बायोप्सी लेते हैं. वो बायोप्सी में जो हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट आता है, दैट्स कॉल्ड डायग्नोजिंग द ट्यूमर, दैट रिपोर्ट्स कि ये ट्यूमर है. एंड सर्वाइकल कैंसर में अगेन बेसिकली जब पैप स्मीयर करते हैं या फिर व्हेन वी गो टू गायनेकोलॉजिस्ट एग्जामिन करते हैं, अगर कुछ अल्सर दिखा इन द एरिया ऑफ सर्वाइकल एरिया, they do a biopsy of that. Biopsy is just a removal of small tissue from the vaginal area or from the cervical area and give it for testing. अगर वो पॉजिटिव आता है तो अगेन वी डायग्नोस इट एज सर्वाइकल कैंसर. नाउ ओवरियन कैंसर्स बेसिकली डायग्नोसिस होता है बेस्ड ऑन द सोनोग्राफी, बेस्ड ऑन द इमेजिंग. इफ अगर मार्कर्स बढ़े हुए हैं तो ट्यूमर मार्कर ज़्यादा है तो देन वी डू अ फर्दर इन्वेस्टिगेशन, वी डू अ CT, वी फाइंड आउट कि कहाँ है, देन वी डायग्नोस इट एज ओवरियन कैंसर. When it comes to uterine cancer, which is an endometrial cancer, जिसको most commonly endometrial cancer बोलते हैं, और उसका प्रिवलेंस अभी सर्वाइकल से भी ज़्यादा हो चुका है इन अर्बन एरियाज. तो यूट्राइन कैंसर का अगर हम डायग्नोसिस देखते हैं तो डायग्नोसिस इज अगेन, इफ यू गो टू गायनेकोलॉजिस्ट प्रॉब्ली दे डू सम DNC करके एक टेस्ट होता है, एक प्रोसीजर होता है. वो टेस्ट में दे टेक अ स्मॉल स्कूप ऑफ द टिश्यू एंड अगेन दे सेंड इट फॉर बायोप्सी एंड दैट इफ कम्स पॉजिटिव देन द डायग्नोसिस इज मेड कि कैंसर. So what are the treatment options available? So again, I would like to divide them into different cancers. जैसे मैंने बताया था, the most common, let us discuss about breast cancer. जब breast cancer diagnose होता है सोनोमैमोग्राफी के बाद, बायोप्सी के बाद, so what the first step in the breast cancer is to rule out कि अगर वो spread कहीं हुआ है कि नहीं. We do a metastatic workup, we probably see PET CT और probably CT chest और abdomen किसी वो कहीं फैला हुआ नहीं है. अगर फैला हुआ नहीं है तो the most common the treatment, the first step is always a surgical removal. So it could be a lumpectomy, जो breast में जो गांठ दिखता है वो छोटे से गांठ को निकालते हैं, या it could be a complete removal of the breast, mastectomy. This is a surgeon's call. Surgeon decide करते हैं आपके mammography findings को देख के. और जब भी पेशेंट को lumpectomy होता है, it is called breast conservation therapy. So breast conservation therapy का मतलब है breast conservation surgery and radiation. सो जिन महिलाओं को, वुमेन को ब्रेस्ट को कंजर्व करते हैं तो रेडिएशन लेना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज इट प्रिवेंट्स रिकरेंसेस बाद. नाउ व्हेन वी डू सर्जरी के बाद अगर मैस्टेक्टमी किया हो या ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी किया हो, द फाइनल हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट जो आता है दैट इज सीन बाय एन ऑन्कोलॉजिस्ट. हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है. मेन चीज़ होती है कि इसका ट्यूमर साइज़ क्या है और इसके अगर लिम्फ नोड्स पॉजिटिव है कि नहीं, या फिर और अदर रिस्क फैक्टर्स कुछ है. बेस्ड ऑन दिस वी डिसाइड कि पेशेंट को कीमो लेना चाहिए या फिर कीमो स्किप कर सकते हैं. मेजॉरिटी ऑफ वुमेन, यंगर वुमेन लेस दैन 55-60 ईयर्स डू गेट कीमोथेरेपी
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड अगर कीमो स्किप करते हैं तो प्रॉब्ली देयर बी समथिंग गुड प्रोग्नोसिस पेशेंट, जैसे कि ER-PR करके एक टेस्टिंग होता है मोस्ट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर्स में। अगर वो पॉजिटिव है, HER2 नेगेटिव है, बहुत छोटा सा गांठ था जो कि लेस देन 2 या 3 सेंटीमीटर्स है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सच पेशेंट्स कीमो स्किप कर सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, कंसल्ट योर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। ये ब्लैंकेट ट्रीटमेंट नहीं है, डिपेंड्स ऑन योर एज, डिपेंड्स ऑन द रिस्क फैक्टर्स, डिपेंड्स ऑन फैमिली हिस्ट्री, and depends on the size of the tumor, and depends how the prognosis of this cancer is going to be. And ये होने के बाद the last part for breast cancer is about radiation. So you get radiation. Radiation is an integral part क्योंकि recurrences को बचाता है, सेव करता है बाद में ना आए करके। and usually हम लोग पहले 15 days का radiation देते थे। Now for early breast cancers we are doing only for 5 days. So this is about the treatment of breast cancer, and I'll just discuss in few lines about management of cervical cancer, which is also a common cancer in India. तो सर्वाइकल कैंसर मोस्ट कॉमनली जब प्रेजेंट होते हैं दे आर इन मोस्ट एडवांस स्टेजेस। बेसिकली वेरी फ्यू पेशेंट्स अंडरगो सर्जरी, क्योंकि पेशेंट जब आते हैं हमारे पास कि एडवांस्ड होते हैं। वेरी फ्यू पेशेंट्स अंडरगो सर्जरी जो कि स्टेज 1 या स्टेज 1B में हो, ट्यूमर साइज जो कि 4 सेंटीमीटर से कम हो, 3 सेंटीमीटर से कम। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है अभी रिकमेंडेशन है, इट इज़ कीमो एंड रेडिएशन। कीमो इज़ अ वेरी सिंपल ऑप्शन। ऐसे कीमो इट्स जस्ट टेक टू सेंसिटाइज द रेडिएशन एरिया, बट द मेन ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल कैंसर इज अगेन रेडिएशन, जो कि 25 डेज का दिया जाता है। उसके बाद वी डू समथिंग कॉल्ड इंटरनल रेडिएशन, जिसका नाम है ब्रैकीथेरेपी। और लेट मी टॉक another 2 lines about uterine cancer, which is again urban cancer, urbanized cancer now. Most of the women in urban areas cervical cancers कम है और uterine cancer ज़्यादा हो रहे हैं। तो uterine cancer as I said, जब बायोप्सी होता है, DNC होता है, तो you diagnose the cancer and then you staging जो होता है uterine cancer का, it is only after surgery. The first step is again uterus को निकालना, that is radical hysterectomy, along with that removal of the pelvic lymph nodes and also omentectomy, जो कि intestines में कुछ cells होते हैं, they examine and they report. So this entire procedure के बाद जो report आता है, then you decide what treatment is to be done. But what is new in endometrial cancers is basically अभी stage 1 और stage 2 में we used to radiate based on the high risk factors, लेकिन अभी there's a concept of molecular classification. This is really new. molecular classification में 3 चीज़ें हैं जो कि पोल म्यूटेशन है, P53 टेस्टिंग है और MSI। ये तीनों हम डिसाइड करते हैं पैथोलॉजी रिपोर्ट के साथ कि जिसको रेडिएशन मिलना है या नहीं देना है। एंड फॉर एडवांस स्टेजेस, एंडोमेट्रियल स्टेज 3 एंड स्टेज 4 कैंसर्स के लिए डेफिनेटली सर्जरी के बाद कीमो होता है और कीमो के बाद पेशेंट इज रेफर्ड फॉर रेडिएशन। सो दिस वाज इन शॉर्ट अबाउट important cancers and their treatment. Is there any side effect for this treatment? See, if every treatment has side effect, ऐसे नहीं है कि जो हम ट्रीटमेंट लेते हैं जिसका साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी डील विद इट, हाउ वी मिनिमाइज द कॉम्प्लिकेशन, टॉकिंग टू योर ऑन्कोलॉजिस्ट। आई टेल यू सिंपल एग्जांपल, ब्रेस्ट कैंसर जो हम ट्रीट करते थे, द मोस्ट कॉमन कैंसर्स इन इंडिया, ब्रेस्ट कैंसर, द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट और लेट साइड इफेक्ट आई वुड कॉल वाज हार्ट वाज ऑलवेज अ लेट साइड इफेक्ट। पेशेंट्स रेडिएशन के बाद 15-10 साल के बाद जब जीते तो दे माइट सडनली हैव एन MI, दे माइट हैव अ कार्डियक अटैक। सो वो प्रिवेंट करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग एट सह्याद्री हॉस्पिटल इज समथिंग कॉल्ड DIBH, डीप इंस्पिरेटरी ब्रेथ होल्ड, विच सेव्स योर हार्ट एंड प्रोटेक्ट्स योर हार्ट एंड ट्रीट्स ओनली द ब्रेस्ट कैंसर। अगर बहुत सारे वुमेन को डाउट होता है अबाउट रेडिएशन कॉम्प्लिकेशंस, यू गूगल complications of radiation, you get list of things, but the point is they are site specific, that is not pertaining to every cancers. आपका जो ट्रीटमेंट हुआ है दूसरे ट्रीटमेंट दूसरे लोगों के कैंसर्स के ट्रीटमेंट के कंपेयर करेंगे तो बहुत ही अलग। आई टेल यू, ब्रेस्ट कैंसर का जो कॉम्प्लिकेशन इट इज रिलेटेड ओनली टू योर ब्रेस्ट, इट माइट नॉट स्प्रेड टू अदर एरियाज जैसे हेड एंड नेक हो या फिर एब्डोमेन। अगर मैं यूट्राइन कैंसर ट्रीट करता हूँ या सर्वाइकल कैंसर ट्रीट करता हूँ, जब पेल्विस को रेडिएशन देता हूँ, तो यस देयर आर फ्यू साइड इफेक्ट्स जैसे कि बर्निंग इन पासिंग यूरिन, बर्निंग वाइल पासिंग मोशन, या फिर थोड़ा पेट दर्द होना, सो कॉमन है, which are again taken care by advanced techniques. So we have something, Asia's first installation with us, that is called Tomotherapy Redizact X9, which is a fantastic machine with Sahidri Hospital to reduce these complications. And अगर आप normally surgical complications देखते हो तो they are weaning of breast cancer, probably scar होता है which takes time to heal, and cervical cancer and uterine cancer में भी वही होता है, but chemo complications and जो भी radiation complications हो, they are all reversible. Majority of women are worried about hair loss. Yes, hair loss होता है breast cancer के कीमो से, but again
मोस्ट ऑफ द डे केयर सेंटर्स इन हॉस्पिटल्स में अभी है स्काल्प कूलिंग मशीन होते हैं विच दे पुट ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, एंड दिस स्काल्प कूलिंग मशीन बेसिकली रिस्टोर्स द ग्रोथ। रेडिएशन या कीमो के बाद जो बाल बेसिकली जाते हैं तो दे कैन बी रिप्लेनिश्ड, दे कैन कम बैक टू यू आफ्टर यू फिनिश कीमो। सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो आते हैं दे ट्रिम देयर हेयर, दे कीप इट शॉर्ट, एंड इवेंचुअली कीमोस के बाद यू गेट द हेयर बैक बिकॉज ऑफ दिस स्काल्प कूलिंग मशीन। there anything like region specific cancers? यस, पहले इंडिया में कॉमन था सर्वाइकल कैंसर्स और अभी ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है बिकॉज ऑफ द अर्बनाइज लाइफस्टाइल। तो इन सिटीज़, इन अर्बन सिटीज़, तो मोस्ट कॉमन कैंसर इज स्टिल ब्रेस्ट, बट आप विलेजेस में जाते हो, गो टू रूरल पॉपुलेशन, इट इज सर्वाइकल कैंसर बिकॉज ऑफ द हाइजीन एंड बिकॉज ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। नाउ अगेन इफ यू लुक एट द काउंटर पार्ट ऑफ सर्विक्स, यूट्राइन कैंसर जो है, यूट्राइन कैंसर अगेन मोस्ट कॉमन अभी अर्बन में बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ देयर अर्बनाइज्ड लाइफस्टाइल। सी मेनी वुमेन आर ऑन OCPs, मेनी वुमेन आर though in a childbearing age give birth at a later age, late marriages, early menarche, all this contributes to late menopause, all this contributes to these urban cancers like breast and uterine cancers. What is your take home message to the woman? Well, on this Women's Day, I would like to first of all wish all the women a very very happy Women's Day. So you are the integral part of our society. As already told you, it is your health which matters a lot. If you're healthy, probably the family is healthy. So make sure on this Women's Day or probably throughout the year, do have this concept of screening, do have this concept of getting your routine test done every 3 monthly or every 6 monthly, or a screening test done every year for breast cancer and for cervical cancers every 3 years, so that we pick up these cancers, you stay healthy and you secure your family.